Hi guys, welcome to our channel. So not long ago, Devesh and I conducted a session for our juniors for to help them transition from college to career. We help them guide with for the upcoming placement season. So in this event, we gave a roadmap for the preparation for upcoming placements in our college, as well as some company insights and things that you should be knowing before attempting a placement session season. So there are few highlights that we have kept in the video. So stay tuned and do check them out. So, hi guys, I'm Sanchita, and as Rajat already told that I'm interning. I'll be joining ZS Associates as a BTA. Right now, I'm interning at ZS as an Business Technology Solutions Associate since November. Yeah, and I'll be joining since after July. And yeah, we're here to basically guide you and help you with your placement preparation. Basically, your transition from college to corporate. And I hope that this session is helpful. मैं अपना इंट्रो शॉर्ट ही रखूंगा सो आई एम अपकमिंग एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर एट आइडियाज तो आइडियाज में पहले मैं इंटर्न था फॉर 6 months देन दे ऑफर्ड मी अ पीपीओ सो आई विल बी जॉइनिंग एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय फ्रॉम 12th of July. Okay, so let's move ahead. Sanchita. हाँ. So guys, the next couple of slides may be like कुछ हो सकता है कंटेंट तुम्हें ऑलरेडी पता हो, ऑलरेडी तुम्हें चीजें पता है, यू गाइज आर ऑल स्मार्ट, बट दिस स्लाइड बेसिकली इज फॉर, आई वुड से दिस मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द थर्ड ईयर folks. So it's basically a placement roadmap, as you can see. सबसे पहले, coming to the first point, that you should be like aware of whatever your interest is. ऐसे नहीं कि तुम भाई अंधाधुन you're just applying कहीं पे भी कोई भी company. ऐसा नहीं है कि मतलब just because you're a CSE student you have to be a coder, you have to take up a job that requires extensive coding and everything. So there are a lot of options. Abhi you can either become a business analyst, you can have tech plus non-tech work, you can do development, you can go to the development side, you can, there's this there are emerging technologies that you can be a part of. So there are a lot of things. So the first point before you applying anywhere will be to obviously think कि what exactly you want to do, which career you want to take up, because एक बार तुम घुस गए उस चीज में, it's very difficult to make that jump कि हाँ अभी मैं suppose अगर मैं जैसे मेरा ही केस ले लो, अभी आई एम डूइंग BTA is mostly non-tech and tech, दोनों it comprises. I can't, after 2 years, if I want to make that switch, people will be like, if I'm applying to a purely coding thing, so people will be like कि क्या मतलब 2 साल तुम experience, तो obviously it matters, right? I'll be starting एकदम नीचे से. So this is one thing that you need to be very sure of कि अभी क्या exactly तुम्हें करना है, क्या तो उसी के हिसाब से you should be applying anywhere. ठीक है. Then next thing is master soft skills, master, you didn't change this, master hard skills था actually वहाँ पे. So soft skills, again, people know that it's important but they neglect it. It comprises of your interpersonal skills, basically what you call the people skills, your communication, your listening skills. Things like, suppose if your colleague is not well and you pitching in to do his or her work, sort of like that. And personally speaking, abhi internship ke through I got to learn a lot of soft skills as well. One example that I would like to give is any sort of problems that you're facing in your project, in your life projects, or in any of your work. You simply, what we think is, we simply go to our manager or our consultant and we're like these are the issues that I'm facing, and like what should be the uh, what should be the path that I what should be the thing that I should do next. So it's not just that, it's basically you presenting, you giving options
you telling them, you suggesting them options ki हाँ, this might be a possible solution for this problem. You're telling, it should come from you. Okay, so this is one thing that will only come with experience, but something that you need to, you know, focus on. Then fourth point was master hard skills. Is again you know, basically learning any sort of technology that you're interested in. एक कोई मोस्टली लोगों से तुम पूछोगे, सब लोग यही बोलेंगे सारे सीनियर्स कि एक लैंग्वेज लो, उसको एकदम अच्छे से करो. ऐसे नहीं कि तुम भाई तुमने थोड़ा ऊपर ऊपर से जावा कर लिया, थोड़ा ऊपर ऊपर से सी प्लस प्लस ले लिया, पाइथन कुछ एक पूछा इंटरव्यूअर ने कि अच्छा तुम्हें सी प्लस प्लस आता है, उसके बाद ही इज आस्किंग क्वेश्चंस एंड लाइक कि अच्छा नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट तो मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, आई कैन कोड इन दिस लैंग्वेज बट आई नो कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस लैंग्वेज. सो दैट शुड नॉट बी द केस. And third point is again understood. Bagging on campus placement तो ये तो सबको चाहिए ही चाहिए. But इसमें there's this speaking specifically, you know, regarding our college placements. तो you should be very clear कि तुम्हें on campus placement अगर ले रहे हो, for I'm talking about those folks who are also, you know, also planning to apply off campus. तो अगर तुमने on campus लेना है तो इतना याद रखना एज अ बैकअप. सो यू शुड ट्रीट इट एज अ बैकअप. यू शुड कीप इन माइंड कि हाँ, बाय चांस तुम्हें ऑफ कैंपस नहीं मिला, यू माइट बी ज्वाइनिंग दैट कंपनी. एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में यू विल बी जस्ट जहाँ पे तुम्हें मिला फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, यू अप्लाइड इट एंड यू गॉट इन, एंड देन यू आर लाइक कि नो, this is not the company that I want to work for. This is not something that I want to, you know, continue or be make my career on. So that should not be the case. Also हमारे college में the thing is कि we don't have any sort of schedule. We don't get that कि अच्छा ये महीने में ये company आने वाली है with this so and so package. So what happened in our case, like the 2020 batch, 21 batch, sorry, COVID वाला. So people sort of panicked. Okay, मतलब starting में company आई and starting में कुछ companies आई थी अच्छी, कुछ normal भी आई थी. People applied, they were not sure कि next कौन सी क्या schedule क्या होने वाला है, कब क्या आने वाला है. फर्स्ट मंथ में ऐसे भी हुआ कि एक महीने में एक कंपनी आई, उसके बाद 2-3 वीक्स का डायरेक्ट गैप हो गया एंड देयर वाज नो न्यूज़, नथिंग. सो पीपल वर लाइक कि अच्छा अभी नेक्स्ट कंपनी आएगी, चांस नहीं लेंगे, चुपचाप अप्लाई कर देंगे. एंड देन बाद में दे रिग्रेटेड क्योंकि बाद में यू नो बेटर कंपनीज केम इन एंड पीपल एंड दे वर लाइक कि नो, आई शुड हैव वेटेड, आई कुड हैव गॉटन दिस opportunity. One very good example is Deloitte and ZS का जो हुआ. Anyways, second is considering off-campus opportunities. So yeah, so if you're done with your on-campus placement and you want to look for opportunities off-campus, that is also something that you should, you know, explore. Don't just मतलब give up मत कर दो कि हाँ ऑन कैंपस हो गया तो उसके बाद बस अभी चिल करना है. क्योंकि बहुत कंपनीज ऐसे भी हैं कि दे यू नो ज्वाइनिंग उनका लेट रहता है, या बाद यू नो पीपल गेट सॉर्ट ऑफ एंशियस कि क्या करना चाहिए क्या नहीं. तो ऑफ कैंपस इज ऑलवेज अ थिंग दैट यू कैन ऑलवेज लुक फॉर. अभी सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, सबको लगता है कि सिर्फ डीएसए कर लिया या उप्स कर लिया हो गया. अभी जितने भी कंपनीज आती है, नियर अबाउट 64 कंपनीज कॉलेज में आई. एंड व्हाट वी वर आल्सो थिंकिंग कि डीएसए उप्स करने से हो जाता है, लेकिन वी आल्सो फाउंड दैट कि हमने अभी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस लिए थे, नियर अबाउट 24-27 हमने अपलोड किया. उसी में वी सॉ दैट कि डीबीएमएस आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लाइक in any interview, some of the seniors have also joined us. अपने ही मीटिंग में है, लगे तो एंड में अपन उनसे भी बात करेंगे. तो पूछ सकते हो उनसे कि DBMS भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है. उसके बाद आता है OS एंड CN. अभी ये चीज़ें कब देखनी है? व्हेन अ कंपनी कम्स अप एंड तुम देख रहे हो कि क्या क्या प्रोफाइल है उसका. जस्ट लुक आउट फॉर व्हाट द कंपनी इज डूइंग. लाइक आई विल टेक एग्जांपल ऑफ Avaya. Avaya is completely into computer networks. तो वो वही क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हैं अपने टेक्निकल राउंड्स में. एंड लास्ट आता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, दैट इज AI ML क्लाउड. रेस्ट इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मैनी ऑफ यू मस्ट हैव वर्कड विद रेस्ट APIs, फिर SOAP एंड ऑल.
तो कभी कभी कुछ स्टार्टअप्स को चाहिए होती है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मेनली स्टार्टअप यूज करती है, AI, ML, क्लाउड, फिर ब्लॉकचेन, रेस्ट। तो इनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना इज बेटर। अभी I have told you the three things: DSA, OOPS and DBMS. I request you guys to keep a notebook and a pen. थोड़ा नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद की सिर्फ 2 स्लाइड्स थोड़ी एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद आई विल जंप डायरेक्टली इनटू कॉलेज प्लेसमेंट्स एंड कॉलेज का प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो। आई हर्ड कि मैनी जूनियर्स ऑल्सो ज्वाइन, लाइक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी ज्वाइन किए हैं। एंड आई सॉ फॉर्म्स के क्वेरीज, उसमें ऐसा था कि कैन यू जस्ट प्रोवाइड अ रोड मैप या समथिंग ऑफ कि हम कैसे स्टार्ट करें। अभी इफ यू आर इन सेकेंड ईयर, आई विल सजेस्ट कि तुम्हारा DS1 DS2 रहेगा, कंप्लीट करके उसको रिवाइज करते रहना। तो DS के लिए ये एक छोटा रोड मैप है कि इसमें दोनों हो गए, लाइक एरे, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यूज एंड बाइनरी ट्रीज तक। आई विल टेल कि इट्स अ बेसिक DS और यहाँ तक आना ही चाहिए। एडवांस में आप जाओगे तो ग्राफ थ्योरी एंड हैश टेबल्स एंड ऑल, एंड एल्गोरिथम्स में एटलीस्ट सर्चिंग एंड सॉर्टिंग तो तुमको आने ही चाहिए विथ ऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल। एंड आई विल टेल यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट कि बिकॉज ये रोड मैप हमने डिसाइड किया है, नॉट नेसेसरी कि आपको सेम फॉलो करना है। यू कैन गो ऑन इंटरनेट एंड चेक मेनी अदर रोड मैप्स आर देयर, बट मी एंड संचिता फाउंड दिस लिटिल बिट हेल्पफुल। काफी लोग, 2-3 लोग से एंड थोड़े बहुत मेरे ही फ्रेंड्स से जो लोग अच्छी कंपनीज में सिलेक्ट हुए, उनसे पूछ के मैंने डिसाइड किया है कि ये वाला एक रोड मैप विल बी बेस्ट। Third and fourth thing is OOPS and DBMS. Also, one more person is there within the meeting जो अवाया में अभी भी सिलेक्ट हुआ, उसको भी OOPS पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड उसमें मेन फैक्टर रहता है कि यू नो OOPS, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्या है, कैसा है, यू एवरीथिंग यू नो, बट काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। तो यू शुड नो अबाउट दिस। एंड OOPS, DS, एल्गोरिथम एंड DBMS ऑल आर बेसिक। DBMS तो तुम लोग अभी थर्ड ईयर में सीखोगे, लेकिन अगर तुम्हारा DS एल्गो खत्म हो गया है, तुमने सेकेंड ईयर के एंड में खत्म कर लिया है एंड यू आर इन 3-1, अपने कॉलेज के हिसाब से बात करो ट्राइमेस्टर वाइज, इफ यू आर इन 3-1 देन स्टार्ट डूइंग DBMS और DS एल्गो वगैरह सब प्रैक्टिस में रखना। हाँ, अभी सब पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, नेक्स्ट आता है कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो बेसिक्स, GFG एंड हैकरन। GFG इज गिग्स फॉर गिग्स। मैंने ये 2 क्यों रखा बेसिक्स में, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे, साथ में यू नीड टू ऑल्सो रन द कोड और चेक वेदर द कोड इज देयर ऑन, तुम्हारा प्रॉपरली एग्जीक्यूशन वगैरह हो रहा है कि नहीं, उसके लिए है GFG एंड हैकर रैंक। बेसिक्स में सारे कर लो। हैकर रैंक में अगर तुम्हारी एक लैंग्वेज, जैसे संचिता ने बोला कि पहले कोई एक लैंग्वेज फिक्स करो, तुमने डिसाइड कर लिया C++, जावा, या तो C++ के हैकर रैंक के सारे क्वेश्चन कर डालो, जावा डिसाइड किया तो जावा के सारे कर डालो। वंस यू आर फेमिलियर, सब कुछ हो गया, तुमने बेसिक्स भी कर लिए, DS एल्गो भी कर लिया, DBMS भी कर लिया, नाउ यू जंप टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इसमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स रहता है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व सम ऑफ द कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, एंड ये तुम्हें बहुत काम में आते हैं बिकॉज हर बार नया क्वेश्चन आता है कंपनीज की तरफ से जब एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है। हाँ, अभी ये एक सिनेरियो हो गया। अब टाइम आ जाता है कि 7-8 दिन पहले या विद इन उसी दिन या उसके 2 दिन में टेस्ट वगैरह रहती है फॉर कंपनी साइड, और मेनली 2 चीजें रहती है उसमें, MCQ टेक्निकल एंड कोडिंग के 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन। सो बेटर गो टू लीड कोड फर्स्ट। अगर आप, काफी लोग को पता ही होगा लीड कोड क्या है, सो लीड कोड पे जाके इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रेप कर लो, इट विल बी मच मोर बेनिफिट टू यू। तो वैसे ही एक GFG के इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस क्वेश्चंस रहते हैं, 100 क्वेश्चंस रहते हैं। एंड हाँ, एक मेन चीज कि कोई भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, जस्ट गो ऑन GFG और तुम लोग ने देखा है कि ये डिटेल्स वगैरह सब तुमने पढ़ लिया है, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो टू GFG, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस वगैरह सब पढ़ लो एंड देखो कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प मेनी ऑफ आवर माई फ्रेंड्स, एंड हमें भी काफी बार हेल्प किया। डेलॉइट, जब मेरा फर्स्ट टाइम डेलॉइट निकला था, तो GFG पे जाके ही मैंने देखे थे कि कौन से टॉपिक्स यूजुअली पूछते हैं एंड क्या क्वेश्चंस रहते हैं, जैम राउंड क्या रहता है, ये क्या रहता है, वो क्या रहता है, सब GFG से ही मेरे को पता चला था। एंड देन 1-2 दिन का गैप मिला था, तो उसमें प्रैक्टिस किया था। अभी कॉम्पिटिशन्स एंड हायरिंग चैलेंजेस, सो यू नो कि अपने हैकेथॉन्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उसी के साथ साथ हायरिंग चैलेंजेस भी ऑर्गेनाइज होते हैं, जो बेसिकली दे आस्क, दे कीप अप 2 to 3 चैलेंजेस। ये भी अभी जो चल रहा है जस्पे का, एंड सेकंड है फ्लिपकार्ट का। तो वो वैसे कॉम्पिटिशन्स यूजुअली इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं, हैकर, डेयर टू कम्पीट, टेक गिग। इन तीनों पे भी अपनी नजर रखा करो कि इन केस ऑन कैंपस चल रहा है तुम्हारा कुछ, तो
लेकिन यू वांट गुड पैकेजेस एंड तुम्हारे पास थोड़ा है पोटेंशियल कि आई कैन कम्पीट विद अदर पीपल टू, तो आई विल सजेस्ट कि हैकर अर्थ, डेयर टू कम्पीट, टेक गिग, इनमें इंटर्नशिप्स एज वेल एज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एंड हम एवरी वीक वी ट्राई टू पुट एवरी वीक की कोई ना कोई कंपटीशन यहाँ कवर करे, तो यू कैन विजिट अवर चैनल टू, और हमारा वीडियो रहता है ये जो जिसका टाइम स्लॉट हमेशा 1 से 2 वीक्स का रहता है एप्लीकेशंस का। सो यू कैन गो टू अवर चैनल ऑल्सो, वहाँ से भी तुम लिंक्स देख सकते हो। हमने पिछले पिछले वीक में जस्ट पे का डाला था। वी आर अगेन गोइंग टू पुट इट ऑन वेनेसडे को वी विल पुट अबाउट फ्लिपकार्ट ग्रेड एंड मेनी मोर चैलेंजेस जो हायरिंग या तो इंटर्नशिप हायरिंग के लिए लेते हैं। अभी इन चैलेंजेस में थोड़ा एक बेनिफिट ये रहता है कि यू गेट टू स्टार्ट वर्किंग इन द कंपनी अर्ली। अगर तुम 2023 पास आउट हो, मतलब यू आर इन करेंटली इन सेकंड ईयर और आपने अप्लाई किया, यू विल बी एट सिलेक्टेड एज एन इंटर्न, वहाँ पे पीपीओ के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं बिकॉज दिस इंटर्नशिप्स आर फ्रॉम 6 to 8 months। सो यस, अबाउट दिस नेक्स्ट थिंग विल बी बिल्डिंग योर रेज्यूमे। संचिता थोड़ा डिस्क्राइब करेगी इसके बारे में। Yeah, so this first point is तो मतलब common sense है। Please don't be stupid and lie because a lot of people are suffering। इसके वजह से हमारे बैच में भी बहुत लोग हैं जिन लोगों ने मतलब किया है, and trust me, you don't want to go through that humiliation, that embarrassment जो होता है when the interviewer catches you and you're like कि अच्छा तुमने तो ये mention किया है, but you know this is completely different, I'm not getting that vibe of you। Also there have been a lot of cases when aptitude में people have aptitude and technical test में people have copied and submitted the answers, but then when they are appearing for the technical interview or the HR interview, people are asked the interviewer usually asks, अच्छे companies में तो पूछते ही है कि तुमने इस कोड के पीछे तुम्हारा लॉजिक क्या था, and people are not able to explain it। तो you don't want to be in that position। specifically resume के बारे में बोलते हुए I would say कि भाई मत झूठ मत बोलो बस। The second point is understood again, be concise। लंबा लंबा कहानी राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। Just mention, be to the point। It should basically in 2 pages you should be, when a person looks at your resume, he or she should be able to see कि अच्छा तुमने तुम्हारा पता चलना चाहिए कि exactly क्या है, like about you पूरा पता चलना चाहिए। 2 pages, 2 pages से ज्यादा I wouldn't suggest to go। उससे ज्यादा it's not required as well, so try and keep it short। Also one thing that we missed out here is again the hard and soft skills that we were talking about in the second slide। so basically यही नहीं कि तुम अपने टेक्निकल स्किल्स ही डालते रहो। बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि टेक्निकल स्किल से पूरा भर देते हैं, दे डोंट पुट इन सॉफ्ट स्किल्स थोड़ा भी। so you should put in whatever soft skill you have, you should make sure that you include it in your resume because आजकल companies are looking for sort of all rounders। they want people to be good at everything। हाँ, coding भी आना चाहिए, you should be able to interact with the client also, so that is also something that you should include। and बाकी third is थोड़ा you should be able to tweak your resume according to the job profile that you're applying। so yeah। सो थर्ड पॉइंट में मतलब शी वांटेड टू से कि अगर कंपनी आया है बीटीए से रोल के लिए तो अलाइन करो बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के हिसाब से अपना रिज्यूमे। अगर डेवलपर के लिए आई है तो डेवलपर के हिसाब से, अगर वो कंपनी को नोड जेएस डेवलपर चाहिए तो लिखो स्किल्स वो आने चाहिए, अगर तुम्हें आते हैं तो वो मेंशन करो तो पर्टिकुलर। हाँ। दिस आर द कंपनीज। हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज सॉफ्टवेयर, सेकंड इज एनालिस्ट, थर्ड इज अदर्स। अदर्स में क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस, एमएल या जीईटी। So this were the 3 categories: software developer proper, analyst proper, analyst में भी business technology analyst, and others में मतलब ML engineer हो गया, QA analyst हो गया, फिर GET हो गया, graduate engineering training and all। So अगर तुमको नाम नहीं पता तो तुमको ऑफकोर्स कंपनी के अंदर क्या चीज़ है क्या नहीं वो नहीं पता होगी। बेटर गो टू ग्लासडोर पे देख लो क्या है कंपनी की रेटिंग, कैसे फीडबैक लिखा है, सीईओ के बारे में क्या लिखा है, सब कुछ। थर्ड उसमें आ जाता है कि लिंक्डइन पे जाओ, एल्यूमिनाइज ढूंढो, अपने कॉन्टैक्ट्स में जाके एल्यूमिनाइज में ढूंढो, एल्यूमिनाइज को सीधा कॉन्टैक्ट करो। बेस्ट थिंग इज कि हमने अब तक आई गेस 37-38 कंपनीज कवर किया है, हमने सबके लिंक्डइन अकाउंट्स दिए। ऐसा फ्लड आउट मत करो, जस्ट पिंग देम कि एवरीथिंग इज प्रॉपर और नॉट, कि क्या होता है कंपनी में एंड वेदर आई शुड गो फॉर इट और नॉट। इवन
तुम हमारे चैनल पे के जाके कमेंट्स वगैरह में भी बोलोगे तो वी विल ट्राई टू रिप्लाई इट, और द पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग, वी आर टेकिंग इंटरव्यू, उसको तुम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। अगेन दिस गोज फॉर की पोजीशन में भी, अगर तुमने बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट चूज कर लिया, फिर तुम्हें वही पाथ फॉलो करना पड़ेगा, BTA, देन एसोसिएट कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, एसोसिएट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, देन मैनेजर। एंड अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर का चूज किया तो एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर, SD 1 2 3, देन टीम लीड, टेक्निकल लीड एंड ऑल। सो अभी से डिसाइड कर लो कि क्या करना है। फर्स्ट थिंग इज लिंक्डइन अपना एकदम प्रॉपरली अरेंज कर लो। लिंक्डइन शुड बी बेस्ट थिंग टू फाइंड द जॉब्स। उसमें भी आई विल सजेस्ट टू हैव 100 या 1000 प्लस कम्युनिकेशन, एंड उसमें भी इन पर्टिकुलर टू हायरिंग मैनेजर्स, फ्रेंड्स, सीनियर्स, दोज हु आर वर्किंग इन दैट कंपनी दैट यू वांट टू गो। एटलीस्ट कनेक्शन ज्यादा बनाओ। तो सपोज तुमने मेरे साथ कनेक्शन बनाया, मैंने कोई लाइक किया कोई पोस्ट पे, तो तुम्हारे यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। हायरिंग, अगर मैंने किसी के हैश हायरिंग पे क्लिक यस किया या लाइक किया, तो इट विल ऑल्सो शो इन योर पोस्ट ऑल्सो। सो लाइक ऐसे फीड भरती जाएगी लिंक्डइन पे। सेकेंड, हमको कल ही पता चला ट्विटर पे भी काफी डेवलपमेंट कंपनीज लाइक स्टार्टअप्स है, डेफोलियो वगैरह है, ये लोग अपना हायरिंग वहाँ पे हैशटैग हायरिंग करके चलाते हैं, एंड ट्विटर पे से भी रिक्रूटमेंट करते हैं, लाइक इंटरेस्टेड एंड ऑल, तो ट्विटर पे DMs आते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इज एंजल लिस्ट। एंजल लिस्ट तुमको लग रहा होगा कि ओनली फॉर स्टार्टअप्स है, ऐसा नहीं है। गुड स्टार्टअप्स है, ग्रोइंग स्टार्टअप्स है, एंड तुमको पता है कि स्टार्टअप से कितना एक्सपोजर मिलता है। अभी इंटर्नशिप्स काफी बार तुमने किया होगा, तो यू माइट बी नोइंग कि कितना एक्सपोजर वगैरह मिलता है। तो ये 3 जगह है, लिंक्डइन, एंजल लिस्ट एंड ट्विटर। आई विल मोर फोकस ऑन लिंक्डइन बिकॉज लिंक्डइन पे यूजुअली जल्दी अपने को जॉब्स एंड ऑल दिखती है। इवन मैनेजर्स अपने आप ही पोस्ट करते हैं कि आप मुझे ये भेजो रेफरल डालने के लिए। सो लिंक्डइन का एक अप्रोच मैं बता देता हूँ कि डेली, मतलब अगर तुमको ऑन कैंपस हो गया है एंड इफ यू आर स्टिल अभी से देखना है तुमको ऑफ कैंपस, तो रोज 5-5 कंपनीज अप्लाई करो, रोज 5-5, सीरियसली रोज 5-5, इतना ही। जिसमें ज्यादा कैपेसिटी है 10-10 करो। एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ तो हो जाएगी 150-200, फिर भी रिप्लाई नहीं आता, 2 या 3 कंपनी का मैक्स आता है। सो जिसका भी रिप्लाई आया, सो गिव इट द फुलेस्ट, मतलब टेस्ट भी दे दो अच्छे से, एंड उसके कुछ, एंड ऑफ कैंपस में बहुत पेशेंस चाहिए रहता है। नियर द प्रोसेस टेक फ्रॉम 1 month to 3 months लेजिट, कि तुमने 1 महीने में टेस्ट दिया, सेकंड महीने में तुम्हारा फर्स्ट राउंड होगा, थर्ड महीने में HR राउंड होगा, ऐसा भी होता है ऑफ कैंपस में। सो ऑफ कैंपस में बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, एंड यही स्ट्रैटेजी अपनाओ। पहले तो कनेक्शंस ग्रो करो, फुल कनेक्शंस, फिर नियर अबाउट 1000 हो गए तो बेटर है, 1000 प्लस भी करना इज मच बेटर। सेकेंड की जॉब्स डेली के 5 या 10 अप्लाई करने हैं। थर्ड इज की सीनियर को, अगर कोई अच्छे सीनियर है जो कम्युनिकेशन में तुमसे बात होती है, उनको यू कैन डायरेक्टली पिंग saying a paragraph written about you, resume attach, and just tell him कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई पोजीशन ओपन है एज ए इंटर्नशिप या तो फॉर अ फ्रेशर, तो आप चेक करो, अगर पॉसिबल है तो मेरे को रेफरल दे दो। दिस आर द अप्रोचेस ऑफ लिंक्डइन। एंजल लिस्ट में तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, एंड एंजल लिस्ट के तो चीज़ें, एंजल लिस्ट रिप्लाई बैक भी करता है। सो बिकॉज दे आर स्टार्टअप, उसको रिक्वायरमेंट रहती है लोगों की, एंजल लिस्ट पे तो आता है। बट गुड कंपनीज का एंजल लिस्ट पे मिलना थोड़ा मुश्किल है। ग्रोफर एंड वगैरह का इट्स लक बाय चांस, तो यू कैन सर्च फॉर इट। So this was all about exploring off campus. इसमें 3 चीजें आती है, या तो तुम MS करने जा रहे हो, या तुमने ऑन कैंपस निकाल लिया है, ऑन कैंपस निकाल लिया है, ऑफ कैंपस जाना है, ऑन कैंपस निकाल लिया है तुमको, वो कंपनी में ही नहीं जाना, बिजनेस वगैरह में जाना है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। इस तीनों में कॉलेज प्लेसमेंट सेल को तुमको इन्फॉर्म करना रहता है। यूजुअली अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि यस मैं MS करने वाला हूँ और मेरा से निकल ही जाएगा, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लेसमेंट फिर अवॉइड करो, बिकॉज अगर तुम्हारा कुछ भी प्लान ऑफ होता है तो यू कैन ट्राई ऑफ कैंपस या जनवरी वगैरह में बैठना स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग आती है कि ऑन कैंपस निकाल लिया, सेटिस्फैक्शन नहीं है, ऑफ कैंपस निकालना है, तो ट्राई की कोई अच्छी और तुरंत, मतलब रिकरिंग नहीं, लाइक अभी मैं EQ में सेलेक्ट हो गया, तुरंत आइडियाज आया, अभी मुझे आइडियाज में जाना है, बट मैं उसके एक्सटर्नली अप्रोच कर रहा हूँ और तुरंत HR वगैरह से बात कर रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। उनका ऑन गोइंग प्रोसेस में यू शुड नेवर इंटरफियर। अगर कॉलेज को ये चीज पता चलता है तो यू माइट बी डिबार्ड फ्रॉम कंप्लीट प्लेसमेंट। ड्रीम तो छोड़ो, किसी में भी नहीं बैठने देंगे फिर। तो दिस इज वन थिंग। एंड थर्ड इज कि रिजेक्ट ही करना है तो बेटर कि पहले कंपनी को इन्फॉर्म करो कॉलेज से पहले
कि ट्राई कॉन्टैक्टिंग कंपनी, उनको पहले बताओ कि नहीं मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ ये वो, एंड इफ यू वांट टू कीप इट दैट वे कि कॉलेज शुड नॉट इंटरफियर, तो टेल द कंपनी पर्सन इटसेल्फ। इसमें एक और चीज़ है जो एमएस वाले हैं, आई डोंट नो कि तुम्हारा प्लेसमेंट का क्या सीन है, बट मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि एटलीस्ट यू शुड हैव अ कंपनी इन योर हैंड, बिकॉज मेरे ही काफ़ी दोस्त जाने वाले थे एमएस, एंड में उनको रियलाइज हुआ कि एमएस का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ जाके, दे माइट नॉट एक्सेप्ट इंडियंस, अपने इधर कोविड का अब तक सीन खत्म नहीं हुआ, सो दे सैट बैक फॉर प्लेसमेंट्स फ्रॉम मार्च, वापस मार्च से बैठे प्लेसमेंट्स में, एंड कुछ लोग को फिर 3 या 4 में चलाना पड़ा। तो जो एमएस करने जा रहे हैं, अगर जीआरई वगैरह दे दिया है तो आई वुड सजेस्ट कि पहले ही इनिशियली कंपनी निकाल लो, क्या पता तुम्हारा जीआरई के वहाँ प्रॉब्लम आ जाए, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास बैकअप रहेगा 2 साल काम करने का इन द कंपनी दैट यू आर वर्किंग फॉर। ठीक है, दिस वाज टू हैंडल मल्टीपल ऑफर्स। बेसिकली मल्टीपल ऑफर्स इसलिए मैं बोला कि ऑन कैंपस का किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं होता, देखा है मैंने बहुत लोगों को, किसी को नहीं होता, सबको देखना है कि दोस्त सिलेक्ट हो रहा है अच्छी जगह, मुझे भी वहाँ होना है, सो लेजिट नो वन स्टॉप्स एट इट, एंड हाँ बस इसमें तो मल्टीपल ऑफर्स का इतना ही था, एंड बस आई गेस सो संचिता। Anyways, coming to basically what our channel is about. So as you can see, we have a channel on YouTube, The Basely Way. The QR code is there in the left hand bottom side. So हम लोग का अभी currently एक series segment चल रहा है, placement interview experience series, जो तुम्हारे ही seniors है जो आके अपना experience share कर रहे हैं। जितने भी कंपनीज आए हैं कॉलेज में, वी आर ट्राइंग कि हम सबको कवर करें, सो दैट यू नो कि अच्छा ये कंपनी है तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू दिस सीनियर, यू नो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, क्या पैकेज है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, व्हाट सॉर्ट ऑफ रोल द कंपनी इज कमिंग फ्रॉम फॉर, so that is one segment that's still going. And the other thing that we are posting weekly basis पे is the latest job updates, where we put in कि जो jobs अभी recently आई हैं, any sort of job openings, any hiring challenges, any coding competitions and everything, so we cover that in that segment. We also occasionally we have this exam preparation or fellowships that we try and post कुछ something different that you can gate, जैसे gate preparation का we have a video, so anybody who wants to prepare for gate can go through that. Yeah, and that's it. So do subscribe, and I hope that तुम्हें इतना guidance मिल रहा है, so you should be utilizing that. I'm seriously telling, हमारे चैनल पे जितने भी सीनियर्स आके तुम्हारे अपना एक्सपीरियंस शेयर करके गए, दे ऑल ऑफ देम हैव सेड कि काश वी आल्सो हैड दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि हमारे सीनियर्स भी ऐसा कुछ करते तो वी कुड हैव इट वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर अस टू लुक इनटू प्लेसमेंट्स एंड बैग अपॉर्चुनिटीज तो कॉलेज का। हम अपने सुपर सीनियर्स को नहीं जानते इतना प्रॉपरली, लेजिट जितना हम तुम लोग से अभी कनेक्टेड है उतना हमारा कनेक्शन हमारे सीनियर्स के साथ नहीं था, नो के बराबर। सो वी आर टेलिंग कि इतना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इतने सीनियर्स को तुम जानते हो, तुम्हारे बैच का थोड़ा ट्रेंड देखा है मैंने, थोड़ा एमएस साइड ज़्यादा है, सो आई थिंक ठीक है वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन यस सो हमारा तो प्लेसमेंट से ज़्यादा रिलेटेड था, बिकॉज जॉब इज़ वन थिंग विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। एक बार जॉब लग गई देन थोड़ा रिलैक्स लगता है, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि बाकी कुछ भी नहीं करना, तुम्हें प्रोजेक्ट्स वगैरह भी रहते हैं, लेकिन जॉब लगने के बाद थोड़ा शांति मिलता है। सो लेट्स कीप टू Q&A, अभी जिसको जैसे डाउट्स है पूछो। So guys, that was our session. Hope आपको वीडियो पसंद आया हो, and keep supporting us. Don't forget to like the video, share it with your friends, and drop us any sort of feedback or comments that you have on this video. We'll continue to make content. So guys, 1K के बहुत पास है, रेड बटन दिख रहा होगा तो ग्रे कर दो यार, एंड अभी आउटरो में you will find out our vlogs as well as the company playlist. So do also check them out. Okay guys, bye bye, take care.